तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम बता रहे थे आपको वेक्टर्स पे डिस्कशन चल रहा था। और वेक्टर्स में स्केलर्स बता दिए गए थे आपको कि स्केलर्स क्या होते हैं। तो स्केलर्स जो थे आपके, तो मैंने लिखा था स्केलर्स क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस डू नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ। अब वेक्टर्स क्या है, यही सब चीजें होंगी, इसमें डायरेक्शन जुड़ जाएगा और ये डू नॉट हट जाएगा। तो वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड, यूनिट, डायरेक्शन और क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन लॉ को भी फॉलो करते हैं। वेक्टर्स का मैंने हल्का सा एग्जांपल भी दिया था स्केलर्स का, जैसे स्पीड और वेलोसिटी। उससे पहले था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी थी। वेलोसिटी, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सो वेक्टर डिवाइडेड बाय ए स्केलर इज अगेन अ वेक्टर। सो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, स्केलर मल्टीप्लाइड है ये वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर क्वांटिटी, again a vector. Therefore, momentum which is represented by p, small p, is mv, is a vector. Again, acceleration is a vector. What is acceleration? Acceleration is rate of change of velocity. So rate of change of velocity means final velocity minus initial velocity divided by time. So change in velocity divided by time. Change in velocity is it's itself a velocity. Suppose a man is running at a speed of 10 km per hour, and its velocity changes to 20 km per hour. वो तेज चलने लगता है, भाग दौड़ने लगता है. So change in velocity will be 20 minus 10 is equal to 10 km per hour. So change in velocity, rate of change of velocity is vector. Force F ma, scalar quantity into vector quantity, vector. और भी है इसके आगे जो हम धीरे धीरे आपसे डिस्कस करते जाएंगे टाइम टू टाइम. सो ये वेक्टर क्वांटिटी थी. अब आता है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. क्या होता है?
लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सबसे पहले लेता है ट्राइंगल लॉ। Suppose we have two vectors A and B. One more thing here. How the vector is represented. तो vector is represented by an arrow, जो कि मैं आपको पहले हल्का सा बता चुका हूँ, लिख के दिखा चुका हूँ, जैसे arrow. So this is a vector quantity. This one is vector's tail, and this one is head. Pointer is head and back side is tail. तो tail to head एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होगा? एरो। जैसे अभी लीविंग दिस टॉपिक फॉर अ मिनट, सो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो. So for example, the displacement, suppose a man, in the last lecture I have explained you, suppose a man moves from A to B, then B to C, then C to D, then D to E, then AE will be the displacement of the man. He is moving from A to B, B to C, C to D, D to E, then AE will be its displacement. This is the direction of displacement and velocity. So this is the displacement vector AE, like this. This one is A and this one is E. This is the vector. And a vector quantity, suppose velocity लेते हैं. If velocity is represented by vector, suppose there is a vector AB, and this may represent any vector quantity, suppose displacement, velocity, force, etc. So the length of this vector will be of the order of that quantity. Suppose the length of this is 3 centimeter. 3 centimeter. So that may be equivalent to force equal to 60 Newton. Suppose this represents the force F. Which force? 60 Newton. This vector AB represents the force of 60 Newton. So 1 centimeter will be equal to 20 Newton. 1 centimeter is equivalent to 20 Newton. So in this kind we represent the vector. So we come back to the triangle of vector addition. Suppose we have two vectors, vector A and suppose vector B. Suppose this is CD and this is EF. So the vector CD represents a vector quantity A, and the arrow EF represents the quantity B. A may be something, B may be something. Same quantities are added and subtracted in physics. So physical quantity A and physical quantity B are represented by vector CD and vector EF. Suppose we want to add these two vectors. So एक ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड्स ले लीजिए इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. क्या? Two adjacent sides of a triangle
proportional to magnitude of these quantities. And representing their directions. Their directions. इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि वेक्टर ए को, ये जो वेक्टर ए था, इसे ट्राइंगल की एक साइड मान लीजिए और इससे ट्राइंगल की दूसरी साइड बना लीजिए। कौन सी? एडजेसेंट साइड्स। तो हमने बना लिया यहां पे वेक्टर ए, किसी भी क्वांटिटी को अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर एरो लगा देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वेक्टर ए और इसके हेड से, क्योंकि इसकी क्या बना है? एडजेसेंट साइड बनानी है ट्रायंगल की। किस वेक्टर से? अनदर वेक्टर बी से। तो इस वेक्टर बी से इसकी एडजेसेंट साइड बना दीजिए ट्रायंगल की। इसे बना दीजिए यहां पे, ये बना दिया वेक्टर बी, ए और बी। हमने कैसे किया? एक साइड इस वेक्टर की बना दी और दूसरी साइड इस वेक्टर की बना दी, यहां से इसके हेड से मिलाते हुए। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड्स की मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और उनके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ट्राइंगल का होता है, ऐसा होता है। ये ट्राइंगल है, आपने कैसे बनाया ट्राइंगल? ए बी सी ऐसा बनाया सपोज ट्राइंगल। तो ए बी, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है। फिर क्या बनाया? बी सी, ये डायरेक्शन है बी सी। फिर ट्राइंगल में थर्ड डायरेक्शन क्या होगा? सी ए बी बी सी सी ए। अगर ऑर्डर चलाएंगे ये बन गया। तो हमें क्या करना है? दोनों वेक्टर्स को ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड बनानी है जो डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करे इस वेक्टर को। तो हमने क्या बना दिया? ए बी बना दिया। अब इस ट्राइंगल की क्या कर दिया? थर्ड साइड बना दीजिए। तो इस ट्राइंगल की हमने थर्ड साइड बना दी। थर्ड साइड का ऑर्डर क्या था? थर्ड साइड का ऑर्डर ये वाला था, लेकिन इसमें क्या करेंगे? वेक्टर एडिशन में हमें ऑर्डर को, डायरेक्शन ये वाला था, इसका डायरेक्शन ये वाला था, तो हमें इसमें एडिशन में क्या करेंगे? इसके डायरेक्शन को बदलेंगे। So if two vectors represents the adjacent sides of a triangle in order of magnitude and in direction, then the third side taken in the reverse order represents the resultant of these two vectors. So third side taken in reverse order. So इसका ऑर्डर क्या था? इसका ऑर्डर ये था, लेकिन हमें क्या करना है? रिवर्स ऑर्डर करना है। तो कर दीजिए रिवर्स ऑर्डर। ये हो गया, ये रिवर्स ऑर्डर हो गया। दिस वन, ये था, ये था, और इसका ऑर्डर क्या हो गया? ये रिवर्स ऑर्डर। थर्ड साइड टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। सो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स एंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज अगेन अ वेक्टर। वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? साइड ले लेते हैं, जैसे मोमेंटम है, मोमेंटम होता है m इंटू वी है वेक्टर। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऊपर एरो लगा देते हैं, m इंटू वी। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? p, वेक्टर p, बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, p इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो दिस इज रिटन एज p, a small arrow on the top, a kind of bar with arrow. So momentum is taken as p. So this one is the resultant r of a and b, and this is written as
आर इक्वल्स ए प्लस बी। सो इसमें क्या किया, ट्राइंगल की टू एडजेसेंट साइड्स ली जिनका जो कि वेक्टर्स के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन थी और क्या थी, वेक्टर्स के डायरेक्शन बता रही थी। तो ट्राइंगल की थर्ड साइड टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर विल रिप्रेजेंट्स इट्स रिजल्टेंट। दूसरा लॉ होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। Second one is law of parallelogram. ये भी वेक्टर एडिशन का क्या है, एक लॉ है। सो सपोज अगेन वी हैव टू वेक्टर्स, दिस इज वेक्टर ए एंड सपोज दिस इज वेक्टर बी, वी हैव टू वेक्टर्स। तो इन्हें क्या करेंगे, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से, और इनमें कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। जैसे पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स क्या होंगी, ए आपने ये बनाई, ये आपका ए है, तो एडजेसेंट साइड दो हो सकती है, या तो बी आप यहां बना दीजिए, या तो यहां बन सकता है, ये भी एडजेसेंट हो जाएगा ये और ये, या बी आप यहां बना दीजिए हल्की सी, या भी इस तरह से बना दीजिए, ये भी एडजेसेंट हो जाएगा। तो हमें ये नहीं लेना, हमें ये वाला लेना है। इनमें क्या अंतर है, हमें लेना है बी ऐसे, ये वाला बी मैंने ऐसा यहां ले लिया, रिप्रेजेंट कर दिया थोड़ा सा, तो मैं ये वाला नहीं लेना, हमने इस बी को उठा के यहां रख दिया सीधा, और हमने कर दिया ये। क्या अंतर हो गया, टू एडजेसेंट साइड्स तो लिए हमने, लेकिन इनका एक कॉमन वर्टेक्स है। कॉमन वर्टेक्स यहां पे भी था, कॉमन वर्टेक्स यहां पे भी था, कॉमन वर्टेक्स, लेकिन इस कॉमन वर्टेक्स में क्या है, दे द बोथ द वेक्टर्स आर पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द कॉमन वर्टेक्स। इस कॉमन वर्टेक्स से ए भी दूर की तरफ जा रहा है और बी का डायरेक्शन भी क्या है, दूर की तरफ है। दे बोथ आर पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द कॉमन वर्टेक्स। अगर हम यहां लेते तो अगर हम ये वाला ना लेते, अगर हम ये वाला ना लेते और यहां लेते, सपोज हम बी यहां ले लेते, सो इन दिस केस this one is the common vertex and A is pointing towards the common vertex while the B is pointing away from the common vertex. So हमें ऐसा नहीं लेना, हमें ऐसा vertex लेना है, both the vectors are pointing away from the common vertex, वो दोनों common vertex से दूर जा रहे हैं, तो केवल क्या है, ये वाला है। Now both the vectors are गोइंग अवे या पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द कॉमन वर्टेक्स। तो ये हो गया दोनों का। अब क्या करिए, इस पैरेललोग्राम को पूरा कर लीजिए, तो बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे। हमने ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली और बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, तो इस कॉमन वर्टेक्स से पास होने वाला जो डायगोनल होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। यानी ए और बी का रिजल्टेंट क्या है, आप इसका डायगोनल ये वाला, दिस वन इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। सो आर इज ए प्लस बी।
अब वेक्टर्स का अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो ये तो एडिशन के लॉ थे, लॉ ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का लॉ ऑफ एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं। अब सब्ट्रैक्शन पे आते हैं, वही दो वेक्टर ले लेते हैं। सपोज वी अगेन हैव टू वेक्टर्स लाइक दिस ए सपोज हम पे ए और बी है, तो हम क्या करें, इन दोनों के जो टेल हैं, ये हेड है, ये भी हेड है, ये ए का टेल है, ये बी का टेल है, टेल, इन दोनों के टेल्स को जोड़ के बना दीजिए, इनके दोनों को टेल्स को जोड़ दीजिए। यानी इस वेक्टर बी को आप यहां ले आइए इसके पास, जिससे कि टेल से टेल जुड़ जाए। तो इस वेक्टर बी को मैं ड्रैग करके ऐसे ला रहा हूं इसके पास, यहां पे लिया है मैं। तो इस वेक्टर बी को मैं लिया है यहां पे, ये मैंने वेक्टर ए था हमारा, ये वेक्टर बी, ए और बी को मैंने जोड़ दिया, इनके टेल्स को जोड़ दिया। तो टेल्स को जोड़ के आप इसकी थर्ड लाइन और मिला दीजिए, इनके हेड्स को भी मिला दीजिए। अब मैंने इनके हेड्स को मिला दिया, तो ठीक है, दो वेक्टर के टेल से टेल जोड़ दिए, यानी क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, और हेड को मिला दिया। अब सपोज वी आई हैव टू फाइंड दी ए माइनस बी। वेक्टर ए माइनस बी, तो आप क्या करिए, ए की तरफ एरो बना दीजिए, जो पहले वेक्टर होगा उसकी तरफ एरो बना दीजिए। ए माइनस बी फाइंड आउट करना है, तो हमने यहां एरो बना दिया ये। देन दिस आर इज रिप्रेजेंटिंग ए माइनस बी। अब आप सपोज हमें बी माइनस ए चाहिए था, तो बी माइनस ए चाहिए था, बिल्कुल सेम करना है। आप ए बनाइए, ए भी बना दिया, बी भी बना दिया, ए बी को जोड़ दिया। आपको क्या चाहिए, बी माइनस है, बी पहले लिखा है, बी माइनस ए, तो जो पहले लिखा है उसकी तरफ एरो बना दीजिए। आप ये एरो बना दीजिए, तो ये वाला जो आर प्राइम होगा, ये होगा वेक्टर आर प्राइम विल बी बी माइनस ए। ये वेक्टर एडिशन होता है। इसे आप ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं, इसी तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये लॉ ना लगा के ग्राफिकल मेथड भी होते हैं। तो सपोज ग्राफिकल मेथड से एडिशन करना है, और आपके पास दो वेक्टर थे ए और बी, तो आप क्या करिए, ग्राफिकल मेथड से एडिशन करने के लिए आप वेक्टर ए बनाइए, सिमिलर टू ट्रायंगल ए बनाइए, और इसे यहां बना दीजिए बी को, और रिवर्स ऑर्डर में से मिला दीजिए ट्रायंगल बना के। आर हो जाएगा ए प्लस बी, ये सिमिलर टू ट्रायंगल मेथड है। सब्ट्रैक्शन में ग्राफिकल मेथड क्या होगा, वो इंपॉर्टेंट है। ये तो था एडिशन में, अब आते हैं सब्ट्रैक्शन में। आपके पास ए है, और बी है, ए और बी दो वेक्टर है हमारे पास, और हमें सपोज फाइंड आउट करना है ए माइनस बी। तो ए को तो ऐसे ही ड्रॉ कर लीजिए, ये ए को मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, ये मैं ड्रॉ कर लिया ए, या ए ऊपर लिख देते हैं, ये मैं ड्रॉ कर लिया ए। अब ए माइनस बी को आप लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी।
तो आप माइनस बी को ए में ऐड कर दीजिए, ये बी है, इसका रिवर्स कर दीजिए तो माइनस बी बन जाएगा, और ए में क्या करना है, ऐड करना है। तो इसे उल्टा कर दीजिए, इसे उल्टा कर देंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, यानी ए प्लस माइनस बी। तो इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं।